When we think about cloud, it seems like it's one solution to all our problems. But the reality is, cloud gives us many options. It gives us choices depending on uh, how we are consuming cloud and where actually it is deployed. Depending on this consumption and the deployment or execution, cloud is divided into different service models and deployment models. Since we are following the NIST definition, so as per the National Institute of Standards and Technology, cloud has three basic service models and four deployment model. अब अगर हम लिटरेचर की तरफ देखें और उस तरफ जाएं तो लिटरेचर में बहुत सारे सर्विस मॉडल और डिप्लॉयमेंट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस. नाउ these service model जब हम इसको देखते हैं, so the service models are actually stacked on top of each other. So when we talk about this particular stack, we simply say that there is, for example, our SAS software as a service model, and then we have our PaaS, that is platform as a service model, and we also have our IaaS, that is infrastructure as a service model. अब इन सर्विस मॉडल में जो डिफरेंस है वो बेसिकली इस चीज़ का होता है कि हाउ दे आर मैनेज. ये मैनेजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टू अंडरस्टैंड दिस टैग एंड टू अंडरस्टैंड दिस सर्विस मॉडल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. जो सबसे मतलब लिटरेचर में भी आपको ये एग्जांपल मिलेगी, एंड दैट एग्जांपल इज़ पिज्ज़ा एज अ सर्विस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि खाने की बात हो रही है तो समझने में भी आसानी रहेगी. So if we think, let's take an example कि हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, and we have one option, and that is making everything ourselves. So we can make the dough ourselves, we can make the sauces ourselves. हम उसको घर पे बनाएं, उसको प्रिपेयर करें, ओवन में तैयार करें और उसके बाद बैठ के उसको enjoy करें. So such kind of an option, हम इसको कहते हैं कि ये basically on premise है. We need to do everything ourselves. Now think about something easier. Easier क्या है? We go to a market, we go to a store, और वहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे? टेक एंड बेक की ऑप्शन है. सो वी गो टू अ स्टोर, वी टेक दिस प्री मतलब जो फ्रीजर में रखे होते हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं. दे आर रेडी. वी सिंपली नीड टू ब्रिंग देम एट होम, एंड देन वी नीड टू पुट देम इन ओवन. बेक करना है और फिर उसको हम मतलब बैठ के इंजॉय करेंगे. सो this is something which is much easier than preparing each and everything ourselves. बिल्कुल इसी तरह let's make it further easy management के point of view से, and that is the delivery. So let's call somebody. हम सिर्फ ये चॉइस करेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल कौन सा पिज़्ज़ा का फ्लेवर पसंद है, एंड वी विल ऑर्डर, और डिलीवरी का हमें उसको घर पे डिलीवर कर देगा. वी विल enjoy it, and yes, we simply need to wash our dishes at the end. And the last option is dining out. So that's the easiest one from the management point of view कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता. Simply you go outside, you enjoy your pizza, you pay the bills, and you leave the place. Now think this analogy of the pizza as a service in terms of computing. तो जब हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं, let's suppose you are running a business, so what you want to do, you want to put less time on the management of your computing infrastructure. अब इस केस में जो हमारे पास कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो हमारे पास क्या है? वो कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं. सो थिंक अबाउट दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कि आपने उनको बेसिकली मैनेज नहीं करना, ऑटोमेटिक होंगे इन द वे अगर आप इस मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज़ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, सो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यू हैव टू पुट लिटिल बिट ऑफ एफर्ट. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपकी जो मैनेजमेंट एफर्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी. नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, एंड ऑफ कोर्स वी डू, वी विल कवर these service models in detail. तो the first one, that's the infrastructure as a service. जब हम infrastructure as a service की बात करते हैं, so basically हम बात करते हैं raw hardware की. raw hardware क्या चीज़ है? Basically these are our, for example, storage devices हैं. So we are provided with some kind of storage devices like hard disk. So yes, we have these hard disk available. फिर हमारे पास कुछ कंप्यूटिंग पावर है. सो लेट्स सपोज देयर आर सम
प्रोसेसर्स अवेलेबल, या हमारे पास वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं। सो वी आर गिवन सम काइंड ऑफ वर्चुअल मशीन। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास उनसे है डिफरेंट कंप्यूटर्स को उनसे है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, एंड सम काइंड ऑफ नेटवर्क इज अवेलेबल। नाउ व्हेन वी कंबाइन ऑल दीज टुगेदर वी सिंपली से दैट दिस इज़ अ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो, रेंट कर सकते हो। सो एज अ कंज्यूमर यू सिंपली सेंड अ रिक्वेस्ट टू यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप इसको यूज करते हैं, ऑफ कोर्स वी नीड सम काइंड ऑफ अ network, right? So using some kind of a network we can use this infrastructure as for our purposes। और इसी चीज़ को हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। या इट्स अ रॉ कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्किंग, आपके पास उनसे है डिवाइसेस अवेलेबल है। नाउ एज वी टुक द एग्जांपल कि इसको मैनेज कौन करता है। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको आप मैनेज करते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है उनको कौन मैनेज करता है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड द मैनेजर। सो इन दिस केस जो भी आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, हाइपरविजर प्रोवाइड करता है, they will manage the hardware and you as a consumer will simply manage the application and the operating system। And there are many examples. We have the EC2 from Amazon, we have the Azure virtual machines, we have the Google Compute Engine। ये सब के सब basically क्या करते हैं, these provides you infrastructure as a service। Now let's quickly go through the other model, and the second one is actually platform as a service। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एंड दैट एग्जांपल इज बेसिकली जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टूल्स को। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज इक्लिप्स को। सो यू आर यूजिंग इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या चीज़ है, इट प्रोवाइड्स यू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपना कोड जो सा है वो राइट भी कर सकते हैं, आप अपने कोड को कंपाइल भी कर सकते हैं, आप अपने कोड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू अटैच सम काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, तो आप इसी टूल के अंदर वेब सर्वर्स को भी मतलब अटैच कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स यू और इट गिव्स यू द एनवायरनमेंट जहाँ पे आप ये सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इफ़ वी आर डेवलपिंग एप्लीकेशन इन अ क्लाउड, सो वी नीड सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली व्हेन यू यूज इट वी सिंपली से दैट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल, राइट। सो आप यू कैन यूज इट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ऐप एंड अदर developmental processes। Now there are many examples, but the Google App Engine is the best example because we use it as a developer, we use it commonly। और इसमें हमारे पास जो मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एप्लीकेशंस इज़ द मैनेजमेंट साइड ऑफ द कंज्यूमर, और जो प्रोवाइडर है वो बेसिकली ओएस को भी मैनेज करेंगे, इस टाइम में रन टाइम को मैनेज करेंगे, मिडलवेयर को भी मैनेज करेंगे, एंड डिपेंडिंग कि हार्डवेयर कौन प्रोवाइड कर रहा है, they may or may not be responsible for the management of hardware in this particular case। The last one and the most easiest one is the software as a service। ये basically ready to use applications हैं, and the best example is Gmail कि आप simply login होते हैं, आप इसको use करते हैं। So as a consumer you actually manage nothing, and as a provider they manage everything in this particular case, right। So Google Workspace, Salesforce, ये सब के सब जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल है। Now the important thing is this control level, this management point of view। So when we talk about infrastructure, platform and software, so as a consumer infrastructure में हम OS apps को manage करते हैं, but in AS we manage nothing। But if you talk about the provider perspective, in that case IaaS they manage the hardware, but in SaaS they manage everything in this particular case, right। So जो trade off है वो क्या है इस केस में, control versus convenience, right। So if you talk about IaaS we have more control but we have less convenience, but if you talk about SaaS we have lot of convenience available, लेकिन control हमारे पास नहीं होता, वो किसके पास होता है, provider के पास होता है। Okay, fine। So since I will not make this video lengthy, so we will cover the different deployment models in our next lecture। Thank you।